Hello friends, I Dr. Sonendra Kumar Gupta, Profession Head Department of Basic Science. Now we discuss about the Engineering Mathematics 1 Unit number 4 in the lecture number 35. Now today topic is vector space and theorem. Now first we will discuss about the vector subspace. What is the meaning of the vector subspace? Suppose V is any vector space over the field F and W is a non-empty subset of V, then W is said to be the vector subspace of V if W itself a vector space over the same field F with respect to vector addition and scalar multiplication as defined on V. It means that मान लीजिए हमारे पास एक W हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, जबकि V हमारे पास जबकि V जो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, तो और W के ऊपर जो फील्ड डिफाइंड है वही फील्ड अगर हमारे पास V पे भी डिफाइंड हमारे पास होती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर W वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ को यदि फुलफिल करता है तो वो एक वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा. Now we discuss about some with the help of the example. Now first, let V is a set of the all real number and Q is a set of the all rational number, and we know that in the lecture number 34 कि R of Q is a vector space. Suppose Q is a subset of R, then Q of Q is also a vector space, is also a vector subspace of R of Q under the usual addition and scalar multiplication. You can prove easily because Q of Q prove the all properties of the vector space. Now example number 2, suppose C is a set of the complex number and R is a set of the real number, and we know that C of R is a vector space, and since R of C is a subset, then in this condition R of R is also a vector subspace of C of R. You can easily prove this property. Now fundamental theorem on vector space. Now here we can write the some theorem on the vector subspace, but the proof are not necessary for our syllabus. The theorem number 1, a non-empty subset W of a vector space U of F is a subspace if and only if W is closed under vector addition and scalar multiplication. कहने का मतलब ये हुआ किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को अगर V of F का हमें सबस्पेस बताना है तो ऐसी कंडीशन में W अगर हमारे पास वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए फुलफिल करता है तो वो हमारे पास एक वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा. इसको हम चाहें तो वर्ड में कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इफ अल्फा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, देन अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, and A belongs to F and alpha belongs to W, then A dot alpha belongs to W. Now second theorem, a non-empty subset W is of a vector space U of F is a vector subspace if and only if alpha belongs to W, then beta belongs to W, then alpha minus beta is also belongs to W, then A belongs to F and alpha belongs to W, then A dot alpha is also belongs to W. Now theorem number 3 is very important. अगर हमें किसी भी सबसेट को अगर हमें सबस्पेस बताना है और अगर हम ये दो कंडीशन अगर हम यहाँ पर ये कंडीशन अगर फुलफिल कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसे सबस्पेस कह सकते हैं. बस कंडीशन ये कि आपको ये पूरा स्टेटमेंट हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा. ओके, तो कंडीशन क्या है हमारे पास है कि मान लें हमारे पास W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और अगर हम ए बी बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू लेके चल रहे हैं और हम ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू में लेके आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा डब्ल्यू जो होगा एक सबस्पेस होगा. नाउ थ्योरम नंबर 4, a non-empty subset W of a vector space U of S is subspace if and only if A belongs to F and alpha beta belongs to W, then A alpha plus beta belongs to W. Now this is one of the corollary of the above theorem because इन थ्योरम नंबर बी थर्ड में अगर हम बी की जगह 1 रख देते तो हमें ये कंडीशन हमें मिल जाएगी. तो आई थिंक थ्योरम नंबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. अगर हमें किसी भी सबसेट को अगर हमें सबस्पेस बताना है तो हमें इतना बताना सफिशिएंट होगा. आइए थ्योरम नंबर 5 हमारे पास है. ये हमारे पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में प्रूव करने को कही जा सकती है तो इसको हम यहाँ पर ड्राइव भी करेंगे. The intersection of two subspace of vector space is a vector subspace of vector space. It means that मान लें कि हमारे पास W1 और W2 हमारे पास दो सबस्पेस हैं तो W1 इंटरसेक्शन W2 हमारे पास जो होगा वो भी एक सबस्पेस होगा. तो हमें बच्चों करना है कि यहाँ पर है कि हम क्या करेंगे W1 और W2 ऑलरेडी हमें सबस्पेस दे रखा है. तो सबसे पहले हम बताएंगे कि W1 W2 जो है नॉन एम्प्टी है. दैट मीन्स में हम एक कॉमन एलिमेंट लेके आएंगे
देन उसके बाद हम ए अल्फा प्लस बी बीटा को हम W1 इंटरसेक्शन W2 में लाने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसे उसका सब स्पेस कह सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि W1 और W2 हमारे पास दोनों सब स्पेस हैं, तो ऐसी कंडीशन में जीरो वेक्टर जो है W1 में भी होगा और जीरो वेक्टर W2 में भी होगा। तो डेफिनेटली जीरो वेक्टर जो होगा W1 इंटरसेक्शन W2 में भी होगा। इसका मतलब ये होगा दैट मीन्स W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ नॉन एम्प्टी। दैट मीन्स हमारी फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो गई। अब हम क्या करेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 में हम अल्फा बीटा करके दो एलिमेंट लेके चलेंगे। ओके, तो AB बिलोंग्स टू F, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। इट मीन्स दैट अगर अल्फा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर है तो इसका मतलब होगा कि अल्फा बीटा W1 के अंदर भी होगा और W2 के अंदर भी होगा। ओके, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू F, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 और AB बिलोंग्स टू F, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2। ना अब W1 क्या है मेरे पास? सब स्पेस। अगर W1 अगर सब स्पेस, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर AB बिलोंग्स टू F और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 लेके चल रहे हैं, तो हम ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 और A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W2 बिकॉज थ्योरम नंबर 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब A अल्फा प्लस B बीटा W1 के अंदर भी और A अल्फा प्लस B बीटा W2 के अंदर भी, इसका मतलब ये होगा कि A अल्फा प्लस B बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में भी होगा। इट मीन्स दैट हम, इसका मतलब ये हुआ कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो एक सब स्पेस बन गया। आइए प्रॉब्लम नंबर 1 देखें हम यहाँ पर। Union of two subspace of vector space need not to be a subspace. That is, if W1 and W2 are any two subspace of a vector space V of X, then W1 and union W2 need not to be a subspace of V of X. कहने का मतलब ये होगा, जिस प्रकार से हमने देखा कि थ्योरम नंबर 5 में कि अगर अल्फा बीटा W1 और W2 अगर हमारे पास वेक्टर सबस्पेस है, W1 इंटरसेक्शन W2 नेसेसरली एक सबस्पेस होगा, जबकि यूनियन में ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो हमें जब ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे, इसको हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू शो करने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं कि W1 मेरे पास एक सबस्पेस है, जो इस प्रकार से हमारे पास स्ट्रक्चर है उसका है। W2 हमारे पास 0B फॉर्म में है, जो कि V2 ऑफ R का एक सबस्पेस है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर लेके चलते हैं। तो A0 बिलोंग टू W1 है, और तो A0 W1 यूनियन W2 में भी होगा। 0B का W2 में, इसका मतलब है कि 0B जो W1 यूनियन W2 के अंदर भी होगा। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एडिशन यहाँ पर लगाते हैं, A0 प्लस 0B, ठीक है। तो A प्लस 0, 0 प्लस B होगा। दैट मीन्स का मतलब कि AB होगा, और डेफिनेटली साफ साफ दिखाई दे रहा है कि AB जो है हमारे पास W1 यूनियन W2 के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास W1 यूनियन W2 हमारे पास एक वेक्टर सबस्पेस होना जरूरी नहीं होगा। ओके, दैट इज प्लस इज नॉट क्लोज्ड इन W1 यूनियन W2। अगर हमारे पास W1 यूनियन W2 अगर वेक्टर सबस्पेस होता तो डेफिनेटली इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो थी। ओके, नाउ द प्रॉब्लम नंबर 2। If W equal to A1 A2 A3 such that A1 plus A2 plus A3 equal to 0, it means that अगर हम यहाँ पर कोई भी तीन एलिमेंट लेके चलते हैं और W तो उनका एडिशन यहाँ 0 के बराबर दे रखा है, तो हमें बताना है कि W एक सबस्पेस होगा। अगर W एक सबस्पेस होगा तो एट मीन्स A अल्फा प्लस B बीटा वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अल्फा बीटा हमने दो एलिमेंट ले लिए W के अंदर, तो A1 प्लस A2 इक्वल टू 0 है और B1 प्लस B2 प्लस B3 भी 0 है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन हो गया। ओके, अब हम AB बिलोंग्स टू F और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि A अल्फा प्लस B बीटा हमने निकाला, तो हमारा टारगेट ये है कि A अल्फा प्लस B बीटा को हम W के अंदर लाना चाहते हैं। तो हमने A इंटू अल्फा लिख लिया और B इंटू बीटा लिख लिया। अब दोनों का अंदर मल्टीप्लाई किया हमने। अब पहले को पहले के साथ ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है कि ये एलिमेंट जो है F का है, ये एलिमेंट भी F का है और ये एलिमेंट भी F का है। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास को हम इन तीनों का एडिशन लेके चलते हैं। तो तीनों का एडिशन लेते हैं, तो A को कॉमन निकाला, B को कॉमन निकाला, तो A1 प्लस A2 हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0 है, B1 प्लस B2 प्लस B3 भी 0 है। तो इसका मतलब हुआ कि A अल्फा प्लस B बीटा को हमने पेयर की फॉर्म में लिख लिया और साथ में इनका एडिशन भी हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा W एक वेक्टर सबस्पेस होगा। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 देखें। प्रॉब्लम प्रूव दैट द सेट W इक्वल टू AB 0। अब हमारे पास W का जो स्ट्रक्चर जो दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है, हमें बताना है कि एक सबस्पेस है। तो हमने यहाँ पर क्या किया जी, पहले बताएंगे नॉन एम्प्टी। तो 0 को हमने F के अंदर लिया, तो देयरफॉर 0 वेक्टर का मतलब हमारे पास ये हो गया, यानी कि W के अंदर आ गया। इट मीन्स दैट W हमारा नॉन एम्प्टी हो गया।
अब हम क्या करेंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा टाइप की कंडीशन को लेके आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए, ए अल्फा को हम A1 B1 जीरो ले लेंगे और बीटा को हम A2 B2 जीरो ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने ए अल्फा प्लस बी बीटा निकाला, फिर से हमने ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई किया, हमने इस प्रकार से सबको ऐड किया। अब ये एलिमेंट डेफिनेटली हमारे पास, अगर ये दोनों एलिमेंट अगर हमारे पास एफ में होते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास डब्ल्यू के अंदर चले जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर A1 प्लस B2 तो डेफिनेटली एफ के अंदर होना चाहिए। तो हमने बोला कि अगर AB बिलोंग्स टू एफ है, क्योंकि हमारा वो फील्ड है, तो A1 A2 B1 B2 भी एफ के अंदर होंगे, तो A1 B A2 और A B1 और B B2 भी एफ के अंदर होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये एलिमेंट भी हमारे पास एफ के अंदर होंगे। तो हम ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि वो डब्ल्यू के अंदर होंगे। तो डब्ल्यू हमारे पास B3 ऑफ एक्स का सब स्पेस हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, मुझे लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।